Hi, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Now we are going to solve the previous year question paper. The subject is Universal Human Value and Professional Ethics. Okay, ये AKTU यूनिवर्सिटी का पेपर है. सब्जेक्ट कोड है आपका KVE 401. ये आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर है, तो उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे. ठीक है. First question, the subject that enable us to understand the what is value for human happiness is called. हमने पढ़ा था कौन सा सब्जेक्ट है जो बताता है, समझाता है कि what is valuable for human happiness, क्या valuable है human के happiness के लिए. तो correct answer is value education. Value education is the subject which help us to understand what is the valuable for human happiness. ठीक है. Next, values form the basis for all our. Values form the basis for all ours. What is that? Thought क्या है? वैल्यू किसका किसका बेस है? हमारे थॉट प्रोसेस का. थॉट, बिहेवियर एंड एक्शन. वैल्यू से ही हमारा एटीट्यूड, थॉट डेवलप्ड होता है, बिहेवियर आता है और फिर वो एक्शन फॉर्म में बाहर आता है. तो हमारा आंसर होगा सी. थर्ड क्वेश्चन, blank need to be applicable to all human beings irrespective of the caste, creed, nationalities, regional, etc. for all the times and reason. That is the universal. Correct answer is B. For the value education ultimately is targeted to promote blank within the individual, among human beings and with nature. क्या बोल रहा है? वैल्यू एडुकेशन जो है वो क्या टारगेट करता है, क्या प्रमोट करता है विद इन द इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द लेवल, हार्मोनी लेवल. जो वैल्यू एडुकेशन हमें बताता है 4 लेवल है जिसके साथ हमें हार्मोनी मेंटेन करना चाहिए. दैट इज इंडिविजुअल के साथ, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ. ये एमंग्स ह्यूमन बीइंग में आपका ये फैमिली और सोसाइटी दोनों आ जाता है. और लास्ट विथ नेचर. तो हार्मोनी मेंटेन करने को बोलता है वैल्यू एडुकेशन. दैट इज दी बताता है, समझाता है. वैल्यू एडुकेशन के थ्रू हम हार्मोनी मेंटेन करते हैं विथ इंडिविजुअल, amongst human being, that is the society and family, and with nature. ठीक है. Question number 5. Once we know that what is the valuable to us and this value become the base and anchor for that, correct answer is action. यहाँ पे हमने देखा था वैल्यू फॉर्म दी बेस फॉर ऑल. क्या? थॉट है. वैल्यू किसके लिए बेस बना रहा है? थॉट के लिए, बिहेवियर के लिए एंड एक्शन के लिए. सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन है. वंस वी नो व्हाट इज वैल्यूबल टू अस. एक बार जब हमें पता चल जाता है कि क्या वैल्यूबल है तो वो एक्शन फॉर्म में आता है. ठीक है. टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन ब्लैंक्स आर नेसेसरी. Both value and skills are necessary to fulfill the human aspiration. Question number 7. Science and technology can only help to provide to achieve what is considered valuable. Yes, science and technology बताता है कि what is considered to valuable and to provide the competence of deciding what really is valuable. So both A and B. Question number 8. When we identify and set the right goal and produce the right direction, this is known as value domain. Value domain क्या बताता है आपको? एक सेट ऑफ राइट गोल एंड एक बताता है सेट ऑफ राइट गोल्स एंड राइट डायरेक्शन बताता है वो. ठीक है. तो दैट इज द वैल्यू डोमेन. क्वेश्चन नंबर 9. When we learn and practice to actualization this goal to develop the techniques to make this happen in real life in various dimension of human endeavor, this known as. क्या है ये? वैल्यू डोमेन एंड डोमेन ऑफ स्किल. तो एक्चुअली ये डोमेन ऑफ स्किल है लेकिन इसके अंदर वैल्यू डोमेन भी आता है. ठीक है. तो ये आपका बोथ आएगा. क्वेश्चन नंबर 10.
Blank is the process to find out what is valuable to me by investigating within the myself and what is the right for me and true for me and has to judge within myself. Here they are talking about to investigating within myself. खुद को पहचानो, खुद को investigate करो, explore करो. So that is this self exploration. Correct answer is this self exploration. Question number 11. It remain invariant with time. क्या है जो टाइम के साथ बदलता नहीं है? It remain invariant with time. That is the natural acceptance. Correct answer is C. C. ये जो natural acceptance है वो they are not change with the time. ठीक है, जो आप बिलीव अभी रखते हो कि फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इज द गुड हैबिट और गुड थिंग, तो आप वो आपकी ग्रोइंग एज के भी साथ आप ये बिलीव लेके जाओगे. दैट इज द नेचुरली एक्सेप्टेंस. उसको टाइम से कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ठीक है. मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इज, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है? फीलिंग ऑफ द हैविंग और मेकिंग द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी मोर देन अदर्स. ठीक है. Feeling of having or making the required physical facility equal to other. फिर क्या है? Feeling of having or making the available less than required physical facility. But prosperity is actually feeling of having and making the available more than required physical facility. ठीक है, तो correct answer is D. प्रोस्पेरिटी हमेशा जितना रहता है उससे हम, जितना फैसिलिटी हमें रहता है उससे हम ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा फील करते हैं. दैट इज द प्रोस्पेरिटी. क्वेश्चन नंबर 13. SBDD इज फुल फॉर्म. दैट इज द साधन, व्यान, दुखी, दरिद्र. ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है. फिर है आपका SSDD इज फुल फॉर्म इज दी संपन्न, साधन और दुखी, दरिद्र. ओके, तो इसका मतलब संपन्न संपत्ति है, साधन भी है, फिर भी हम अनहैप्पी हैं, अनहैप्पीनेस है, हैप्पीनेस नहीं है. ठीक है, इसका भी सेम है इन ह्यूमन वैल्यू में. साधन है विहीन, दैट मीन्स विहीन, दैट मीन्स कि डिफिशिएंट, मतलब कमी. दुखी, unhappiness, and daridra, that is the again nothing, unhappy. Next, participants of the human being seen in two form. वैल्यू हमें क्या बताता है? इम्पोर्टेंस बताता है प्लस पार्टिसिपेंट्स बताता है कि पार्टिसिपेट करना है. तो ये पार्टिसिपेंट्स आपका वैल्यू जो बता रहा है वो किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में यूजुअली ह्यूमन बीइंग में आप देखते हो. तो उनके बिहेवियर एंड वर्क या एक्शन अगर यहाँ पे रहेगा तो एक्शन के फॉर्म में. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिहेवियर एंड एक्शन फॉर्म और वर्क फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 16. द वैल्यूज आर द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर ऑलवेज डेफिनेट. यस, द वैल्यूज क्या है? जो वैल्यूज आर द आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. वैल्यू एडुकेशन या वैल्यू का दो आउटकम होता है. एक रियलाइजेशन जो आपको रियलाइज होता है बाय एनालाइजिंग लॉजिकली, एंड एक आपका अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, एंड ये जो है वो क्लियर होता है. डेफिनेट दैट मीन्स वेल डिफाइंड, क्लियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. गिविंग द वेटेज टू फिजिकल फैसिलिटी टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेंसरी प्लेजर एंड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज कॉल्ड. एक्चुअली फिजिकल फैसिलिटी को ज़्यादा वेटेज देना, दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल कॉन्शियसनेस. ठीक है, ह्यूमन बीइंग को हमेशा कम पड़ता है फिजिकल फैसिलिटी. वो उनका जब वो एक नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो वो दूसरे नीड की तरफ जाते हैं. अगर उनका आपका फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाता है, घर, कपड़ा, मकान, खाना, तो वो क्या करते हैं? सेफ्टी नीड की तरफ जाते हैं. सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो उनको सेल्फ एस्टीम में जाना है, रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए. तो एक तरह से उनका नीड का लेवल हमेशा बढ़ते रहता है. बट एनिमल कॉन्शियसनेस में क्या है कि खाना मिल गया तो कंप्लीट हो गया उनका नीड. नींद आ रही है, कहीं पे भी सो लिए, तो दैट इज दी
जो वेटेज दे रहे हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल कॉन्शियसनेस। सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग इज फैमिली। फर्स्ट लेवल हमारा इंडिविजुअल है, सेकेंड हमारा फैमिली है, थर्ड इज सोसाइटी एंड फोर्थ इज द नेचर। दिस इज द 4 लेवल है जो जिसके साथ हमें वैल्यू सिखाता है कि कैसे हार्मोनी मेंटेन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज 2 मैकेनिज्म। सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो 2 मैकेनिज्म को यूज करता है, दैट इज वन इज द नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज को, और एक है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, और दूसरा हम लॉजिकली सोच के उसको इवेलुएट करके फिर एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल, रैशनल एंड वेरीफेबल आर लेवल ऑफ ह्यूमन लिविंग। लेवल तो आपका 4 है। ठीक है। इंडिविजुअल, फिर क्या था आपका फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। सेंटर ऑफ कंटेंट ऑफ डिजायर, दैट इज द ह्यूमन एस्पिरेशन, ये भी नहीं है। गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, दैट इज द करेक्ट। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर क्लास में कि गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसमें आपका यूनिवर्सल, रैशनल एंड वेरीफेबल था। ठीक है। दैट मीन्स कि वैल्यू एजुकेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर रेशनल लॉजिकल बेस होता है, ये वेरीफेबल डेफिनेट रहता है। प्रोग्राम एंड डिजायर आर द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये सेल्फ जो ये मैकेनिज्म है, प्रोग्राम और डिजायर, ये दोनों चीज ही बताता है क्या आपका डिजायर है, क्या एस्पिरेशन है, और किस तरीके से आप उसको कंप्लीट कीजिएगा या फुलफिल कीजिएगा, दैट इज योर प्रोग्राम। वो आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यू एजुकेशन लीड अ ह्यूमन बीइंग टू हार्मोनी। ठीक है। ब्लैंक हेल्प द ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफॉर्म एनिमल कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। आपको वैल्यू जो बताता है, राइट अंडरस्टैंडिंग देता है, और राइट अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर होने में। कॉन्शियसनेस, दैट इज द अवेयरनेस। सेल्फ स्टडी हेल्प अस टू नोन एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को बताता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 25, टू बी इन स्टेट ब्लैंक इज अनहैप्पीनेस, दैट इज द डिसलाइकिंग इज द स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करूंगी। अभी 25 यहाँ तक अपलोडेड है, नेक्स्ट में अगेन 25 में अपलोड कर दूंगी। ओके, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली गूगल का ही सर्च क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली आपके 31st को भी गूगल सर्च ही क्वेश्चन या रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चंस आएंगे। तो टिल अभी तक हमने यूनिट 1 के ही सारे क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, ये 2020 का पेपर है। तो आप यूनिट 1 अच्छे से करके जाओ। मैंने एक एक टॉपिक का लेक्चर वीडियो अच्छे से डाला हुआ है, सारे लेक्चर वीडियो को पढ़ो। मैंने खुद का 25 क्वेश्चंस बनाया है, वो भी अपलोडेड है, उसे भी देखो, फिर ये पेपर देखो, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, और मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दूंगी।